kids. Today we will read a story of half-built house. Now what's in this? In this we have 5 children, and these 5 children were enjoying their vacations at their grandma's house. So notice in the story how their playing had been turned out to be an adventure, and how all the police of their district were grateful to them. Just come and explore. So let's have this story. Come on. The Chitnis is the surname of their children, were enjoying their summer holidays with their grandmother, Alpana Chitni. Grandma's farm was an exciting place for Atrav and Neha, their cousins. It was an exciting place for Atrav. Atrav is the eldest of them. Disha, Dhruv and Dev. The children always had plenty to do outdoors. Climb trees, go swimming, fly kites or play football in the open meadow. And sometimes even manage to have an adventure. Let's go and explore the bamboo grove after tea today. It will be nice and cool in the evening, said Athra, who was 11 years old. Okay, he was the oldest, so he decided that everyone would do what everyone would do. Dev, the youngest, was just 8. But he always said, I can look after myself. The children got on to their bicycles. Be careful, Grandma said. Children, yes, Grandma, we will be careful. We promise, said Athra. It was 5 o'clock in the evening. On the way to Bamboo Grove, they noticed a house that was only half built. What a nice place to play hide and seek, said Disha, who was almost the same age as Athra. Let's play here and not go to the bamboo grove. But what if we see mad dogs there? Asked Neha jokingly. Then only Disha and I will go in first. We will see if it is safe to play there, said Athra. Neha, Dhruv and Dev were eager for an adventure. They waited at a distance for the 2 older children to give the sign that all was fine. Minutes passed. The three were waiting outside, were getting impatient. They decided to go and find out for themselves what was happening. Just then, Athra and Disha come running back. They were frightened. Quick, let's get back to Grandma's house at once, said Athra. We must tell Dad right now what we saw, said Disha. And what did you see? Asked Dev, curious to know what had happened in the half-built house. When the children reached Grandma's house, they were surprised to find Disha's father, Inspector Chitnis, already there. Dad, said Disha excitedly. You will never guess what we discovered. Do you remember those pictures of 3 wanted criminals that we had seen in your office? Those 3 men are here. They are in that half-built house. Athra and I saw the men in black room. Yes, those men almost saw us, but we hid behind 2 empty drums, said Athra. And one man said to others, oh, it's just a cat somewhere. The two children laughed, but that was dangerous, children. Grandma cried out in alarm. Oh, Grandma, but they had an adventure, said Dev. We had a feeling that those crooks were somewhere around here, said Dad. That's why I drove down to the farm. I must call headquarters and ask them to send a patrol team at once. You did the right thing, children. Well done. A little later, the police patrol arrived. Athra and Disha asked if they could accompany the officers. The officers said they could go only if they promised to be obedient. The 2 children eagerly
accompanied the policeman to the half-built house. Very quietly, the four policemen and children approached the room. Then, 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 quick as lightning, the police stormed into the room and got hold of the three crooks and handcuffed them. More officers arrived and the crooks were taken away. The chief officer was very pleased. Good work, children, he said. You were very brave, said Dad. He was very proud to them. Now, is the turn. हमारी इस कहानी में 5 बच्चे हैं जो चिटनीस की फैमिली को बिलोंग करते हैं. चिटनीस इनका सरनेम है और इस फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं उनकी दादी माँ का नाम है अल्पना चिटनी. वो अपनी दादी माँ के एक फार्म हाउस में रहते हैं और वो बहुत ही एक्साइटिंग जगह है रहने के लिए. तो वहाँ पे जो कज़न्स हैं वो हैं नेहा, ध्रुव, देव. ये बच्चे हमेशा इनके पास आउटडोर्स में कुछ करने के लिए होता है. हमेशा कभी पेड़ पे चढ़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, पतंग उड़ाते हैं और मेडोज़ मतलब इस घास के मैदान में खेलते हैं. और कभी कभी इनका जो प्लेइंग है वो एक एडवेंचर में ही बदल जाता है. इसमें जो अथर्व है वो सबसे बड़ा है, वो 11 साल का है और वो कहता है ऐसा करते हैं हम, जो पास में जो बैम्बूज़ का ग्रूव है, बैम्बू ग्रूव मतलब खूब सारे बैम्बू के पेड़, बांस के पेड़ हैं, वहाँ पे चलते हैं और उसको एंजॉय करते हैं उस जगह को. लेकिन इनमें एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है देव. वो सबसे छोटा है. उसको गुस्सा आता है अथर्व पे. वो कहता है मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ. द चिल्ड्रन गॉट ऑन टू द बाइसिकल. बच्चे सभी अपनी बाइसिकल पे बैठते हैं और दादी माँ कहती है ध्यान रखना अपना, बी केयरफुल. यस ग्रैंड माँ, वी विल बी केयरफुल, वी प्रॉमिस, सेड अथर्व. फिर शाम के 5 बज जाते हैं उनको साइकिल चलाते हुए. तभी वो बैम्बू ग्रोव के जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ उन्होंने देखा एक ऐसा घर था जो हाफ बिल्ट था, आधा ही बना हुआ था. तो वहाँ पे दिशा कहती है कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे अपन हाइड एंड सीक खेल सकते हैं. हु वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज एज अथर्व और दिशा एक ही एज के थे, 11 ईयर्स के. लेट्स प्ले हियर, चलो अब यहाँ पर खेलते हैं. बट वॉट इफ़ वी, लेकिन नेहा कहती है अगर यहाँ पे पागल कुत्ते हुए तो देन ओनली दिशा एंड आई विल गो. तो फिर दिशा और अथर्व कहते हैं कि हम पहले जाके देखते हैं कि ये जगह सेफ है या नहीं. तभी नेहा, ध्रुव और देव जो है बाहर एडवेंचर के लिए वेट कर रहे थे. उन्हें भी उस हाफ बिल्ट हाउस में जाना था. फिर कुछ देर, काफ़ी मिनट्स बीत गए लेकिन वो वापस नहीं आए. द 3 वेटेड आउटसाइड. वो बहुत इम्पेशेंट हो गए. इम्पेशेंट मतलब वो बहुत बेचैन हो गए कि अंदर क्या हुआ है पता नहीं. तभी उन्होंने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं. तो फिर दिशा और अथर्व बहुत देर डरते हुए भागते हुए आए और वो बोले क्विक लेट्स गो, गेट बैक टू ग्रैंड मास हाउस. जल्दी चलो, दादी माँ के घर पे चलना पड़ेगा. बहुत डर लग रहा था उनको. लेकिन और वो दिशा कहती है अभी के अभी मुझे डैडी को सब बताना पड़ेगा, डैड को. तो देव पूछता है क्या हुआ, हमें तो बताओ. लेकिन वो बहुत डर गए थे और वो सब घर पहुंच गए. जैसे ही वो घर पहुंचे तो देखा दिशा के डैडी जो खुद एक इंस्पेक्टर थे वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे. वो थे इंस्पेक्टर चिटनी. दिशा कहती है डैडी आपके जो उस दिन आप हमें ऑफिस में लेकर थे वहाँ पे 3 लोगों की हमने फ़ोटो देखी थी, वो वांटेड क्रिमिनल्स की. वो सारे क्रिमिनल्स यहीं पर ही है, उस हाफ बिल्ट हाउस के अंदर वो छुपे हुए हैं. हमने देखा उनको. और दिशा तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अपने पापा को बता रही थी. लेकिन ये कहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने उनको देखा तो वो उन्होंने भी हमें देख लिया था, लेकिन हम तो उन 2 ड्रम्स के पीछे छुप गए. तो उनमें से एक आदमी बोला अरे कुछ नहीं यार, कोई बिल्ली होगी. तो उन्होंने हमें पकड़ नहीं पाए. अरे दादी माँ कहती है अरे ध्यान रखना चाहिए, ऐसा एडवेंचर डरावना हो सकता है. वी हैड अ फीलिंग दैट दोज क्रूक्स ना. अब जो उसके डैडी हैं वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे पता था कि वो जो घुसपैठिए है वो वांटेड क्रिमिनल्स क्रुक्स वो यहीं पर ही छुपे हुए हैं, मुझे पता था. इसलिए मैं अभी के अभी हेडक्वार्टर्स को कॉल करता हूँ. ठीक है, उसके जो डैडी हैं वो हेडक्वार्टर्स में कॉल करते हैं और कुछ और पुलिसमैन वहाँ पे आ जाती है. एक पूरी टीम आ जाती है पुलिस की. तो जैसे पुलिस आती है तो वहाँ पे अथर्व और दिशा पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं प्लीज़ हमें भी अकम्पनी कर लो, हमें भी साथ में लेके चलो ना.
लेकिन जो 4 पुलिस वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम तभी चल सकते हो जब तुम बिल्कुल चुप रहोगे और ओबीडियंट रहोगे। फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते, अत्र और दिशा मान जाते हैं। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, अभी ये वहाँ पर जाने वाले हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, एक लाइटनिंग की स्पीड में पुलिस है ना वहाँ अटैक करती है। लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब जैसे बिजली गिरती है ना, उतनी तेज स्पीड से वो अटैक करती है वहाँ पे, और हैंडकफ कर दी। हैंडकफ मतलब हथकड़ी डाल देती हैं उन क्रूक्स के। क्रूक्स मतलब जो 3 वांटेड जो मुजरिम थे उनके ऊपर। मोर ऑफिसर्स अराइव, तभी कुछ ऑफिसर्स और आ जाते हैं और उन क्रूक्स को ले जाते हैं। और पुलिस बहुत खुश होती है और दिशा के डैड कहते हैं, यू